Good morning students. Welcome back to our next part of class 7th English. I, Shweta Sumra, am your English teacher and today we will read the next part, which is the grammar section of this chapter. Today we will do some basic questions and the question words. So come along, we will start. First question is, read the following conversation. Conversation you all know, बातचीत. Okay, conversation means it's a talk between two or more people. दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, that is called conversation. Okay, so here the character is Ravi, then Mridu. Okay, so the two of them are talking about something. Let's see what they are talking about. What are you doing? So Ravi is asking a question to Mridu. क्या कर रही हो? ठीक है? What are you doing? क्या कर रहे हो? Mridu said, I am reading a book. मृदु ने बोला कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. Okay? Then next Ravi said, who wrote it? ये बुक किसने लिखी? Who wrote it? किसने लिखी है ये बुक? ठीक है? Now just have a look at the words which I am underlining. He asked again, who wrote it? किसने ये बुक लिखी है? मृदु said, Ruskin Bond. मृदु ने कहा कि Ruskin Bond ने ये बुक लिखी है. Then Ravi again said, where did you find it? तुमने ये बुक कहाँ से ढूंढी? तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? Where did you find it? मृदु said, in the library. मुझे ये बुक कहाँ मिली? Library में मिली. Okay? So now, can you find out something from these conversation sentences? कुछ आपको आइडिया लग रहा है किस टाइप से आप इन सेंटेंसेस को देख पा रहे हैं? See, these what, who, where, all these are question words. हम जब भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, we are up to ask some question. ठीक है? हम जब भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, हमें कोई ना कोई प्रश्न पूछना होता है. See, you all can see the question mark also. ठीक है? And question mark is everywhere where you asks a question. Yes or no? We will read it in the punctuation marks part in the grammar. Okay? But you can see what, who, where, when, how, whose, whom, all these are question words. ये सभी words क्या करते हैं बेटा? Questions बनाने में help करते हैं. ठीक है? Notice that what, who, where are question words. ये सब क्या हैं? Question words हैं. ठीक है? Questions that require information begin with question words. Information means, what do you mean by the word information? Information means कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई सूचना चाहिए. ठीक है? किसी भी चीज़ के बारे में. तो आप क्या करते हो? Questions put up करते हो. When you are out from your house from a long period of time, or you can say for 4 to 5 hours, and when you come back late home, your mother and father ask you so many questions. Where were you? Why did you go? With whom you were there? Right or wrong? पूछते हैं ना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, पूछते हैं ना. So these are the questions and they are asked because you want to get some information. Questions क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपको उनका आंसर चाहिए होता है या उनका इंफॉर्मेशन या सूचना आपको इकट्ठी करनी है. ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स आप करते हैं ना क्लास में भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर. yes or no? So they are also what? They are the questions and answers are the information which the question requires. आंसर जो आप लिखते हैं वो क्या है? उस क्वेश्चन के बारे में सूचना दे रहे हो, आप पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो पूछा गया है उसका उत्तर आप देते हो.
ठीक है. सो दैट इज व्हाट अ क्वेश्चन इज, कि आपको कोई सूचना कहीं से लेनी है तो आप क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, which, कौन सा, and how, कैसे. All right. So when, why, where, which, how, whose, whom, all these are the question words. So remember that. Now we have to remember something before we start with the examples of these question marks. What asks about actions, things, etc. Now this what word, which is a question word, it asks about what? Actions and things. कोई भी एक्शन हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, या किसी चीज़ के बारे में जब पूछा जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे? what. ठीक है. what are you doing? doing क्या हो गया? एक्शन हो गया ना, कुछ कर रहे हो. you are performing some act. एक्शन हो गया. what are you doing? ठीक है. who asks about people? Now this who word is used as a question word to ask about whom? people. लोगों के बारे में. who is coming? ठीक है. कौन आ रहा है? who is coming. तो obviously all know, कोई टीचर आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई आपके गेस्ट्स आ रहे हैं, है ना, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, whatever. But that is about some human being. ठीक है. आप काऊ या गोट या डॉग की बात नहीं कर रहे हो, या कोई टेबल चेयर किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. ठीक है. सो हु इज आस्क अबाउट अ पर्सन. विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग्स. विच जो है वो चीज़ों के लिए भी क्वेश्चन में काम आता है और लोगों के लिए भी. ठीक है. सो विच इज़ यूज्ड फॉर पीपल एज वेल एज फॉर थिंग्स. वस्तु और लोगों के बारे में हम विच यूज करते हैं. ओके. वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस. और वेयर जो है ये किसके लिए यूज होता है बेटा? प्लेस, जगह के लिए. ठीक है. वेयर आर यू गोइंग? किस जगह जा रहे हो? ठीक है. घर जा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, प्लेग्राउंड जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो. ओके. देन यू यूज वेयर. ठीक है. या हम कहते हैं वेयर इज ही, वो कहाँ है ना. कहाँ मीन्स जगह, कौन सी जगह पर है, वो घर पे है, ऑफिस में है, रास्ते में है, कहाँ है. ठीक है. सो वी आर आस्किंग अबाउट सम प्लेस, सो वी यूज द क्वेश्चन वर्ड वेयर. गॉट इट एवरीवन? देन कम्स व्हेन. व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम. यू ऑल नो when जो है कब. when did you come? तुम कब आए? so they are asking about the time. maybe it's about 2 o'clock, 3 o'clock, or about yesterday, day before yesterday, कुछ भी. पर ये समय के बारे में पूछते हैं कि आप किस समय आए, आज आए, कल आए, या कितने बजे आए. ठीक है. then you use the word when. when did you come? when did you go? ठीक है. why asks about reason or purpose. अब why जो है, क्यों, ये हम यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड टू मेक अ क्वेश्चन और टू आस्क अबाउट रीजन और पर्पस. कोई कारण या हम किसी वजह को जानने के लिए why काम में लेते हैं. why are you late? बोलते हैं ना, हम क्या कहते हैं? why are you late? तुम लेट क्यों आए? कोई रीज़न बताओ. what is the reason that you came late? why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? रीज़न बताओ. ठीक है. you are asking the reason for the action. ठीक है. तो आप यूज़ कर रहे हो why. ठीक है. then comes how. how asks about
मीन्स, मैनर और डिग्री. अब हाउ मीन्स कैसे. ठीक है, तो कैसे आप यूज़ कर रहे हो किसी मीन्स के लिए या मैनर के लिए, किसी तरीके के लिए या कोई साधन के लिए आप यूज़ करते हो हाउ. हाउ डिड यू कम टू स्कूल. तुम स्कूल कैसे आए. तो द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू नो द आंसर दैट हाउ डिड यू कम टू स्कूल. तुम स्कूल कैसे आए. पैदल आए, है ना, मैनर है ना, या मीन्स जैसे कि आप कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आए हो, आप ऑटो से आए हो, आप अपना व्हीकल लेके आए हो, या यू केम बाय बस, राइट. सो दिस इज आस्क्ड टू नो कैसे आप आए हो. ठीक है, कैसे, हाउ. नेक्स्ट इज whose. whose asks about possessions. whose मतलब किसका. whose cycle is this. whose pen is this. whose car is this. right, whose shirt is this. क्या है बेटा. possession means, the word possession means किसी का स्वामित्व होना उस चीज़ के ऊपर. ठीक है, आपकी या किसी की भी कोई पर्सनल चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोजेशन. वो उसका स्वामित्व रखता है अपनी किसी वस्तु पर. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन. जो आपकी खुद की हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं whose. ऑल राइट, गेटिंग एवरीवन. नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द italicized phrases. Okay, now we have to read a paragraph, then we have to form the questions. Okay, according to the sentences we have to frame the questions. आपने सबने पढ़ा है कि हमने ये सारी चीज़ें जो यूज़ की हैं, whose, how, why, when, where, which, who, what, when, why, where, which, how, all these question words are used to frame questions. ठीक है, और ये हम किस किस रीज़न से काम में लेते हैं ये भी हमने पढ़ा है. सो कम वी विल रीड द पैराग्राफ, देन वी विल फ्रेम द सेंटेंसेस फॉर इट्स लाइन्स. अनिल इज़ इन स्कूल. तो आप इसका एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर इज़ अनिल. बना सकते हैं ना. इस लाइन से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, वेयर इज़ अनिल. तो उसका आंसर हो गया अनिल इज़ इन स्कूल. ऑल राइट, आई एम इन स्कूल टू. मैं भी स्कूल में हूँ. अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो. अनिल लेफ्ट रो में बैठा है. इसका क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ कोर्स, वेयर इज अनिल सिटिंग, है ना. अनिल कहाँ बैठा है. आंसर इज अनिल लेफ्ट रो में बैठा है. ही इज रीडिंग अ बुक. इसका भी सेंटेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ कोर्स. व्हाट इज अनिल डूइंग. अनिल क्या कर रहा है. आंसर इज ही इज रीडिंग अ बुक. यस और नो. अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो. अनिल का जो फ्रेंड है, उसका जो मित्र है, वो दूसरी रो में बैठा है, दूसरी लाइन में बैठा है. कैन यू मेक अ क्वेश्चन ऑफ दिस. Yes. Where is Anil's friend sitting? अनिल का फ्रेंड कहाँ बैठा है. And the answer will be Anil's friend is sitting in the second row. समझ में आ रहा है सबको. He is sharpening his pencil. What is he doing? और what is Anil's friend doing? क्या कर रहा है. He is sharpening his pencil. वो अपनी पेंसिल शार्पन कर रहा है या पेंसिल को छील रहा है. The teacher is writing on the blackboard. क्वेश्चन बन सकता है. Yes. What is the teacher doing? Or what is the teacher doing in the class? Teacher is writing on the blackboard. Okay. Children are writing in their copybooks. बच्चे क्या हैं, वो अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हैं. क्वेश्चन बन सकता है. येस. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में. सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. कुछ बच्चे विंडो से बाहर झांक रहे हैं. ठीक है. सो वी कैन मेक
questions from these sentences, come we will do a few questions. ठीक है, ये आपने देखा, हमने फ्रेम किया भी और अभी हम और करते हैं. Now answer will be the questions, okay, which will be framed from that paragraph. ये जो आंसर्स हैं ये वो ही आंसर्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था, उससे हमने क्वेश्चंस जो फ्रेम किए हैं. ठीक है, चलो हम देखते हैं. Where is अनिल? बताया था ना, अनिल इज इन स्कूल, है ना. तो क्वेश्चन क्या बना उस सेंटेंस के लिए? Where is अनिल? अनिल कहाँ है? सेकेंड, which row he is sitting in? अनिल कौन सी रो में बैठा है? तो अनिल was sitting in left row. ठीक है, ये उसका आंसर था, तो हमने ये क्वेश्चन उसमें से फ्रेम कर दिया. थर्ड, what is he doing? वो क्या कर रहा है ना. अनिल क्या कर रहा है? तो अनिल वॉज रीडिंग अ बुक. अनिल एक बुक पढ़ रहा था ना, तो हमने उससे क्वेश्चन बना दिया, व्हाट इज ही डूइंग. नेक्स्ट, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग? अनिल का दोस्त कहाँ बैठा है? हमने पढ़ा था अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, है ना. अनिल का फ्रेंड दूसरी रो में बैठा है, पढ़ा था ना. तो उस लाइन का हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग? कहाँ पे वो बैठा है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग? अनिल का दोस्त क्या कर रहा है? क्या कर रहा था बताओ? ही वॉज शार्पनिंग हिज पेंसिल. वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा था. यस और नो? सो द क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग? एंड द आंसर वॉज इन द पैराग्राफ. His friend is sharpening his pencil. Next question, who is working on the blackboard? Blackboard पे कौन काम कर रहा है? Teacher is writing on the blackboard. ये था ना सेंटेंस, तो उसका हमने क्वेश्चन बना दिया कि ब्लैकबोर्ड पे कौन काम कर रहा है या कौन लिख रहा है. All right. Next, what are some children doing? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? बताओ क्या कर रहे थे? They were writing in their notebooks, है ना. अपनी कॉपी बुक्स में लिख रहे थे, या आप ऐसे भी कह सकते हो they were looking out of the window, और वो कुछ विंडो से बाहर भी झांक रहे थे, ये भी आप लोग लिख सकते हो. So you all can frame questions from the sentences which are given to you. This is how we do it. आप लोग क्या कर सकते हो, आपको जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उनसे आप प्रश्न या क्वेश्चंस बना सकते हैं. ठीक है, अभी जैसे हमने किया, दिस इज़ वेरी इजी टू डू. ऑल राइट, यू हैव टू रिमेंबर वेयर व्हाट इज़ यूज्ड, वेयर इज़ यूज्ड, वेयर हाउ इज़ यूज्ड, वेयर व्हेन इज़ यूज्ड, वेयर विच इज़ यूज्ड, वेयर whose is used. All these question words are used where. You have to just remember that. We have already discussed all these things in this video, okay? So come along, we will do the next part. Second question is, write appropriate question words in the blank spaces in the following dialogue. ठीक है, dialogue आप सबको पता ही है. क्या होता है dialogue? आप कुछ भी बोलते हैं, दैट इज़ योर डायलॉग. जो मुंह से आपने बोल दिया, दैट इज़ अ डायलॉग. बोलते हैं ना, ज़्यादा डायलॉग मत मार. अपने फ्रेंड्स को आप बोलते हो ना, ज़्यादा डायलॉग मत मार, है ना. इट मीन्स जो आप बोल रहे हो उसको डायलॉग बोलते हैं. अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं. अप्रोप्रिएट मतलब जो बिल्कुल सही हो वहाँ पे. ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब द बेस्ट वंस, जो उसमें बेस्ट सुटेबल वर्ड्स हों वो. In the blank spaces in the following dialogues. Now this is a dialogue. एक बोल रहा है कोई, वो हम लिख रहे हैं in question words. Neha is speaking. See, I have done it for you in these yellow words, so you can read it from here. Or when you will be doing with your textbook work, you will get the fill in the blanks here. Okay? Only blanks will be there. So just try doing that first, and then you can take help from this video. Neha said, when did you get this book? ठीक है, in your book this is a, what is it? This is a blank. book में आपको ये blank मिलेगा, तो वो कह रहा है did you get this book? तो did you get this book का मतलब
शीला सेड yesterday morning. शीला ने कहा कल सुबह. तो हम क्या पूछ रहे हैं? टाइम पूछ रहे हैं ना? Yes. So when will come? Okay. When did you get this book? This will be the question word in this sentence. Next, Neha said, why is your sister crying? Sister is crying. Why is she crying? She is asking for a reason. So whenever you are asking for a reason or a purpose, you will use why. I told you this. आपको ये चीज़ मैंने अभी क्लियर की थी ना कि जब भी आपको किसी चीज़ का कारण पता करना हो या वजह पता करनी हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? क्वेश्चन वर्ड वाई. ठीक है? क्यों? हंस क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? है ना? जा क्यों रहे हो? क्यों मीन्स यू वॉन्ट टू नो द रीज़न. आप उसका कारण जानना चाहते हैं. सो हियर नेहा वॉन्ट्स टू नो अबाउट वाई इज शीला सिस्टर क्राइंग. शीला की बहन क्यों रो रही है? सो इट विल बी वाई हियर. शीला बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल. क्योंकि मेरी बहन इसलिए रो रही है क्योंकि उसने अपनी डॉल खो दी. ठीक है? नेक्स्ट, नेहा इज अगेन आस्किंग dash room is this yours or hers. ठीक है? So here whose will come. I told you whose will be used for possessions. बताया था ना स्वामित्व के लिए आप whose यूज करोगे. किसका? मेरा या उसका या उसका. जिसका स्वामित्व आप दिखाना चाहते हो उस प्रश्न में आप यूज करोगे whose. ठीक है? किसका रूम है? ठीक है? whose room is this? whose book is this? whose pen is this? whose chair is this? All right. So we will use whose to make clear the possession of somebody. तो यहाँ पे नेहा पूछ रही है ये किसका रूम है? तुम्हारा या उसका? ठीक है? शीला said it's ours. शीला ने कहा ये हम दोनों का ही है. All right. Then नेहा said how do you go to school? अब हाउ क्या है? मैनर पूछ लिया ना, मीन्स पूछ लिया. कैसे जाते हो? स्कूल कैसे जाते हो? पैदल जाते हो या रिक्शा में जाते हो या बस से जाते हो? कैसे जाते हो? देयर यू विल यूज हाउ. शीला सेड वी वॉक टू स्कूल. इट्स नियर बाय. हम लोग वॉक करके ही स्कूल जाते हैं क्योंकि वो बहुत पास है हमारे. ठीक है? Next, fill in the blanks with the words given in the box. Now, this is a box, all right? And these are the words given in the box. And just have a look, they all are question words. Aren't they? How, what, when, where, which. है कि नहीं? है ना? They are question words. So, these are the sentences. Here we will put these question words. Okay. The first one is my friend lost his chemistry book. मेरे दोस्त ने chemistry की book खो दी. किसकी? खुद की. His chemistry book. उसकी खुद की ही chemistry की book उसने खो दी. Now he doesn't know. उसको नहीं पता. He doesn't know what to do and where to look for it. ठीक है? What to do. अब वो क्या करे उसको नहीं पता. And where to look for it. और वो उसको कहाँ ढूंढे उसको नहीं पता. ठीक है? So these are the question words which are suitable here. Next is there are so many toys in the shops. Shops में कितने toys हैं? बहुत सारे toys हैं. Number of toys. दुनिया भर के खिलौने हैं. Nina can't decide which one to buy. Now Nina is confused. Nina को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा खिलौना खरीदे. ठीक है? तो हमने एक तो what यूज कर लिया, एक where. Now we have used which also, and then which one to buy. Nina is confused. Nina को नहीं पता कि वो कौन सा खिलौना खरीदने वाली है या कौन सा खरीदे. Next, you don't know the way to my school. तुम्हें मेरे स्कूल जाने का रास्ता नहीं मालूम. Ask the policeman. Policeman से पूछ लेना
हाउ टू गेट देयर, वहाँ पे तुम कैसे पहुँचोगे, हाउ विल यू get to that place. So we have used this how also. Now one of the question word is remaining. So come, we'll take the next. You should decide soon when to start building your house. When मतलब कब, तुम्हें क्या करना है, जल्दी ही डिसाइड करना होगा कि तुम तुम्हारा नया घर बनाना कब स्टार्ट करोगे. When, ठीक है. Do you know how to ride a bicycle? तुम्हें पता है बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं, हाउ. आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई लर्नड इट. नाउ ही सेज मुझे नहीं याद कि मैंने कब चलानी सीखी थी, मैं भूल चुका हूँ. आई डोंट रिमेंबर इट एनी मोर. यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट. द टीचर एडवाइज्ड अनिल. अब ये कह रहा है यू शुड नो व्हेन, तुम्हें पता होना चाहिए कब. व्हेन मीन्स कब. टू टॉक, कब तो बात करनी चाहिए. एंड वेयर टू कीप योर माउथ, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ अपना मुंह बंद रखना चाहिए. ये टीचर ने अनिल को समझाया. ठीक है. सो ऑल दीज वर द क्वेश्चन वर्ड्स, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, whose, whom, all these are the question words we were doing. I hope everyone understood all of it, right? So come, let's take another one. Next question is add im or in to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below. हमें क्या करना है बेटा, im और इन दो वर्ड्स को यूज करना है इन वर्ड्स के पहले. ठीक है. प्रीफिक्स है ये. प्रीफिक्स मीन्स यू हैव टू राइट देम बिफोर द वर्ड्स. ऑल राइट. अब पेशेंट से पहले आई एम या आई एन, वो आप सोचना क्या लगाना है. ठीक है. वी विल डिस्कस इट राइट नाउ. फर्स्ट वर्ड इज पेशेंट, देन प्रॉपर, देन पॉसिबल, सेंसिटिव and competent. Okay, so now these are the words which are used in the sentences, and instead of these words we will use the im or in, and then we will frame the sentence again. ठीक है. हम लोग im और in को पहले यूज करेंगे इन वर्ड से और फिर इन sentences में perfectly लिखेंगे. First sentence is the project appears very difficult. What do you mean by the word very difficult? Very difficult. यहाँ से ढूंढिए, कुछ है क्या? Yes, you will get one. Possible को im या in क्या लगाएंगे? Impossible, right? So here the answer or the word will be impossible. The project appears impossible at first sight, but it can be completed if we work very hard. लेकिन यह हम पूरा कर सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करें या मेहनत करें तो. आप समझे बेटा? दिस इज हाउ वी हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ये वर्ड है, इसकी जगह इन वर्ड्स में से हमको एक वर्ड चूज करना है जिसमें हम इन या इम का प्रीफिक्स लगाएंगे और उससे हम सेंटेंस को बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज he lacks competence, that's why he can't keep any job for more than a year. Competence means बेटा competition की जो feeling होती है या वो अपने आप को दूसरों के बराबर नहीं रख पा रहा, इसी रीज़न से वो हर साल अपनी नौकरी खोता है. ठीक है. अब इस वर्ड को ध्यान रखना, हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे. थर्ड, डोंट लूज पेशेंस. अपना जो पेशेंस है, अपना आपा नहीं खोना. ठीक है. योर लेटर विल कम वन डे. तुम्हारा पत्र ज़रूर किसी न किसी दिन आएगा. द पोस्टमैन टोल्ड मी. ठीक है. पोस्टमैन ने कहा कि आप पेशेंस लूज मत करो, आपका पत्र ज़रूर आएगा. नेक्स्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस. ये कोई प्रॉपर रिमार्क नहीं है इस तरह की सिचुएशन में काम में लेने के लिए. ठीक है. सो सी, कॉम्पिटेंस,
patience, proper, and one more we'll discuss. He appears to be without sensitivity. ऐसा लगता है कि उसमें कोई sensitivity नहीं है. In fact, he is very emotional. लेकिन सच में क्या है, वो बहुत ही भावुक है, बहुत emotional है. ठीक है? So without sensitivity. Now we have some words in that box, and now we will find the answers using im or in as a prefix for those words. Come, we will discuss the answer. Now first one, I told you the project appears impossible. बताया था ना? Very difficult लिखा हुआ था इसकी जगह पे. Very difficult means impossible, जो हो ही नहीं सकता. ठीक है? At first sight, but it can be completed if we work hard. Next, he is incompetent. Now we have used what? In here and im here. ध्यान देना बेटा, हम in और im को use करके हम words बना रहे हैं. He is incompetent. That's why he can't keep any job for more than a year. Incompetent means वो अपनी competition में कहीं stand नहीं करता, उसमें कोई ऐसा feeling है ही नहीं. Don't be impatient. अपना आपा नहीं खोना. ठीक है? Your letter will come one day, the postman told me. तो तुम्हें क्या होना है? Impatient नहीं होना. Here we are using im. Okay? Patient words के पहले im. That's an improper remark to make under the circumstances. Here we are using I am, improper, before the word proper. ठीक है? Then comes he appears to be insensitive. ठीक है ना? हमने यूज़ किया था लास्ट सेंटेंस में, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया था. Now here we are using insensitive. Okay? In fact, he is very emotional. So these are the words we have discussed using im and in as the prefixes to the words. Now we will discuss the next part in our next class. I hope everyone understood all this part very well. So we will meet in our next part. Until then, everyone, take care. Have a great day, beta.